ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने अपोजिशन जमातों के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उन्हें मज़ाहिया खेज़ करार दिया। KTR ने अपोजिशन से सवाल किया कि आखिर वो उस वक्त कहाँ थे जब TRS के मुंतखब नुमाइंदे और पूरी इंतज़ामिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की सरगर्मियों में मुलविस थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP दोनों के रहनुमाओं ने पानी कम होने के बाद ही सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। వీళ్ళు వర్షంలో లేరు, మేము ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలు అప్పుడు లేరు, ప్రజలు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి దొంగలు పడ్డాక 6 నెలల కంటారు చూడండి, అట్లా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్టు. విపత్తులో లేరు, కనీసం విఘ్నతను ఉండాలన్నా. విపత్తులో రాజకీయం చేయడమే తప్ప విఘ్నతతో వ్యవహరించాలనే సోయి కూడా వీళ్ళకి లేదు. ఇంత దిగజారు రాజకీయం. ఇంకా మీదికెళ్ళి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి పనులు చేస్తుంటే అక్కడక్కడ ధర్నాలు, మీ కార్యకర్తలే పైసలు తీసుకుంటారు. వాళ్ళ కుటుంబానికి సహాయం చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండంగా చిరునవ్వులు చిందిస్తూ తీసుకుంటారు. తెల్లారి వచ్చి మళ్ళీ ధర్నాలో కూర్చొని చిల్లర మల్లర విమర్శలిస్తారు. ఇది మీ సంస్కారం. ఇంత బాధ్యతారాహిత్యమైన పార్టీ, ఇంత బాధ్యతారాహిత్యమైన వ్యక్తులు, మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక పైసా వేలేని అసమర్థులు మీరు మమ్మల్ని విమర్శిస్తారా? ఇక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడినా కూడా అర్థమవుతలేదు. ఇక వాళ్ళను సీఎం గారు మాటలు చెప్పాలంటే నాదాన్ని దుష్మన్నట్టు చూడు, అట్లా అయిపోయింది వాళ్ళ పరిస్థితి. సహాయక చర్యలు నడుస్తున్నాయి, రోడ్ల పునరుద్ధరణ నడుస్తున్నది. ప్రజలు ఇంకా 2-3 కాలనీలలో ఇంకా కూడా అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల నీళ్లు పోతలేవు. కొంపల్లిలో ఉమామహేశ్వర్ కాలనీ ఉంది, ఉస్మాన్ నగర్ అని ఉంది, పోతలేవు ఇంకా కూడా. ఇంకా పక్కన చెరువు నిండుకునేలాగా నిండుంది. ఏమైనా చేద్దామంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ప్రమాదం అవుతుందో అని చెప్పి జాగ్రత్తగా చేస్తా ఉన్నాం. మేమేమో ఆ పనిలో నిమగ్నమై ఉంటే వీళ్ళు చిల్లర మల్లర రాజకీయం. నిన్న మొన్న పోయి జోనల్ కమిషనర్ల ఆఫీస్లో పోయి మా అధికారులను బెదిరించినట్టు మాట్లాడు. TRS వాళ్ళు ఏమో రాజకీయం చేస్తుందని చెప్పి చిల్లర మల్లర మాటలు. మేము రాజకీయం చేసినాం. ఇక మా దగ్గర లిస్ట్ ఉన్నది, 4,30,000 కుటుంబాలకు ఎవరెవరికి సాయం చేసినామో మా GHMC కమిషనర్ దగ్గర, మా డైరెక్టర్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర మొత్తం లిస్ట్ ఉన్నది, పోయి చూసుకోండి. TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने हालिया सैलाब को इंसान की लाई हुई तबाही करार दिया और दौरे आंध्र प्रदेश में पिछली हुकूमतों पर तालाबों, टैंकों और नालों के अतराफ व अकनाफ में गैर मजाज तामीरात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इससे अपने हाथ धोने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हालात को बेहतर बनाने के लिए पहले ही कोशिशें शुरू कर चुके हैं और इस सिमत मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पिछली हुकूमतों की दहाइयों में की गई गलतियों की दुरुस्तगी के लिए हमें कुछ साल लगेंगे। ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాటలు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళు కాదండి మొన్నటిదాకా అధికారం ఉంది ఇక్కడ. మేము రాకముందు 6 ఏళ్ల ముందు వీళ్ళు కాదా ఇక్కడ ఉన్నది? ఇలా హైదరాబాద్లో వరదలు వచ్చినాయి, హైదరాబాద్లో నీళ్లు వచ్చినాయి, నాలాల మీద ఆక్రమణలు ఉన్నాయి, చెరువుల మీద ఆక్రమణలు ఉన్నాయని చెలరైపోయి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు. ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఇవన్నీ? ఈ 6 ఏళ్లలో మొత్తం వచ్చినాయా? అంతకుముందు ఉన్నప్పుడు రాలేదా? మేమున్నప్పుడు వేసిందా కిర్లోస్కర్ కమిటీ? మీరున్నప్పుడే వేసిండ్రు. 28,000 ఆక్రమణలు ఉన్నాయి నాలాల మీద అని చెప్పింది కిర్లోస్కర్ కమిటీ ఎప్పుడు? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే. అప్పుడు లేవు ఆక్రమణలు, వాటి వల్ల కదా ఈరోజు వరదలు వచ్చింది. ఇలా మీరు మాట్లాడతారా? ఏమైనా సాయం చేస్తే చేయాల్సింది పోయి, ఇప్పుడు మా హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, మా వాళ్ళు ప్రకటించారు, మా MP గారు ఉన్నారు ప్రకటించారు, 2 నెలల జీతం ప్రకటించారు. కనీసం కాంగ్రెస్ లో ఒక సంస్కారం అని ఉందా? ఒక నాయకుడు ఒక జేబులకి ఒక పైస ఇచ్చిందా? హైదరాబాద్ ప్రజల కోసం ఇలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, రాజకీయం చేస్తూ ఉన్నారు. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जियागुड़ा डिवीज़न के गिरकापल्ली में TRS पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TRS इंचार्ज जीवन सिंह, जियागुड़ा कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा, सीनियर लीडर भास्कर के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने TRS कायदीन को मुबारकबाद पेश की और आवाम को तयक़ुन दिया कि TRS के कायदीन व कारकुनान अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा तैयार हैं। आवाम चाहती है कि पूरे के पूरे 150 कारपोरेटर TRS के होना चाहिए, इतना जोश है लोगों के अंदर। तो आज यहाँ पे कारवान में ऑफिस का इनाग्रेशन किया और मुझे उम्मीद है, क्योंकि इंडिया में जितना तेलंगाना स्टेट में और हैदराबाद में काम हो रहा है शायद कहीं स्टेट में नहीं है। आज हम माइनस में पावर में थे, तेलंगाना बनने से पहले लोग कहते थे कि तेलंगाना बनेगा तो पावर ही नहीं मिलेगा। आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारी है जहाँ सर पर पावर है। 24 घंटे पावर किसानों को दिए जा रहे हैं, जिससे 1 रुपया भी नहीं दिया जा रहा। हमारे किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत 5-5 हज़ार रुपये 2 बार दिए जा रहे हैं, किसानों का इंश्योरेंस किया जा रहा है और हमारे आवाम के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। आज 90,000 बच्चे माइनॉरिटी के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़े, 204 रेजिडेंशियल काम कर रहे हैं। बच्चों को हमारे SC ST BC माइनॉरिटी को IAS की कोचिंग फ्री दी जा रही है।
जितना हो सके हमारे सीएम साहब खासतौर से तेलंगाना स्टेट को डेवलप करने और आवाम को खुशहाल बनाने के लिए, उसकी एक छोटी मिसाल है, इंडिया में नंबर 1 पर हेड इनकम हमारे स्टेट तेलंगाना स्टेट के लोगों की है। आज हमारे लोग बहुत खुश हैं और यही चाहते हैं कि टीआरएस पार्टी इस मरतबा बड़ी मेजॉरिटी से जीते कॉर्पोरेशन में, और मुझे पूरी उम्मीद है हम बहुत आगे बढ़ेंगे और टीआरएस गवर्नमेंट हमेशा आवाम की है और आम की खिदमत करते रहेंगे। और हम अगर किस्मत वाले हैं तो खुदा ने हमें एक अच्छे सीएम को नसीब किया है। केसीआर साहब पावर के लिए पार्टी नहीं बनाए, पावर के लिए टीडीपी बनने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, पर टीआरएस पार्टी तेलंगाना के आवाम का हक दिलाने के लिए बनने वाली पार्टी है। और सारे आवाम में बहुत से जोश और खरोश है इलेक्शन का, और मुझे उम्मीद है बहुत बड़ी मेजॉरिटी टीआरएस पार्टी की रहेगी। तेलुगु फिल्म अदाकार रामचरण ने ग्रीन इंडिया चैलेंज को कबूल करते हुए 3 पौधे लगाए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से ये चैलेंज शुरू किया गया है, जिसमें हिस्सा लेते हुए अहम शख्सियात, सियासतदान और फिल्म अदाकारों की जानिब से पौधे लगाए जाते हैं। बादशाह इन लगाए गए पौधों के साथ तस्वीर को लेते हुए इन तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया जाता है और दीगर 2 अहम शख्सियात को पौधे लगाने के लिए नामजद किया जाता है। So happy సంతోష్ గారు స్టార్ట్ చేసిన ఈ బ్యూటిఫుల్ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ఎంతో వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి చాలా మంది చేస్తున్నారు. నేనే ప్రాబ్లీ ద లాస్ట్ పర్సన్ టు టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ చాలా చాలా సంతోషం అండ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్. ఇది ఓన్లీ ఇంట్లో చెట్లు చిన్న చిన్న చెట్లు పాత్రం కాకుండా ఒక పెద్ద ఫారెస్ట్ కూడా అవుట్స్కట్స్లో తెలంగాణ అవుట్స్కట్స్లో ఆయన తీసుకోవడం. ప్రభాస్, మా డార్లింగ్ ప్రభాస్ నన్ను నామినేట్ చేశాడు. కాస్త డిలే అయినా చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఈ ఆయనతో చేయడం అనేది. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రీన్ ఫౌండేషన్, గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్. ఐ హోప్ టు కంటిన్యూ ఇన్ అ మచ్ బిగర్ వే. ఒక్క సాప్లింగ్ కాదు, ఇంకా చాలా చాలా పనులు చేయాలని. ఇట్స్ వెరీ మచ్ నీడ్, ఇట్స్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ రైట్ నౌ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ప్లాంట్. థ్యాంక్ యూ. आदिलाबाद के सदर कांग्रेस अक़लियती सेल व हरकियाती क़ायद साजिद खान को इंचार्ज सदर ज़िला आदिलाबाद कांग्रेस कमेटी मुकर्रर किया गया है। इस ज़िमन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज श्रीनिवास की हिमायत पर साजिद खान को इंचार्ज सदर कांग्रेस आदिलाबाद मुकर्रर करते हुए इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। ताहम सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी की जानिब से बाकायदा सदर ज़िले कांग्रेस कमेटी का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बावजूद साजिद खान के तकर्रुर से आदिलाबाद के तमाम कांग्रेसी कायदीन, कारकुनान और दीगर ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। बोधन शहर में बांसवाड़ा और जदीद बस स्टैंड रोड पर वाक़े रेलवे गेट पर माल रेलगाड़ी की आमदोरफ्त के दौरान राहगीरों को बाज़ औक़ात घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। इस रेलवे गेट पर माजी में ओवर ब्रिज तामीर करने की बात कही गई थी, ताहम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। आज भी मज़कूरा रेलवे गेट पर माल रेलगाड़ी की आमद व रफ्त के दौरान गाड़ी सवारों को तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, जिस पर वहीं पर मौजूद मुआविन रुकन मजलिस पार्टी अलीम रज़ा ने फौरी हरकत में आते हुए पुलिस को तलब किया और ख़ुद भी मुसलसल 1 घंटे तक गाड़ी सवारों के लिए रास्ता क्लियर करते नजर आए। बोधन की आवाम ने इस रेलवे गेट पर ओवर ब्रिज तामीर करते हुए ट्रैफिक की आसान आमद व रफ्त का वजारत रेल, मुकामी रुकन पार्लियामेंट व रुकन असम्बली और दीगर से इक़दाम करने की अपील की। बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कई NGOs अपनी अपनी सतह पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से भी बारिश और सैलाब मुतासरीन को वबाई अमराज से महफूज रखने के मकसद से हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। खैरताबाद MS मख्ता में मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मुतासरीन की मुफ्त तशख़ीस की और उन्हें ज़रूरी मेडिसिन फराहम की। इस कैंप से सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन ने इस्तेफ़ादा किया। अभी तक ऑलमोस्ट 20 पेशेंट देखे हैं। प्रवीण करके मुस्तफा हेल्पिंग फाउंडेशन वॉलंटियर हूँ। पहले भी बहुत सारे कैंप्स किए हम लोग। अभी कोविड का टाइम में थोड़ा रुका दिए थे। अभी ये बारिश आके जो पूरा MS मक्तल में जो पूरा नुकसान हुआ था, उनके लिए जो अभी हमारा मुस्तफा फाउंडेशन जितना किया है, बोले कि आज थोड़ा एक फ्री मेडिकल कैंप करना है घर, इसलिए आए। अभी तक लगभग 50 पेशेंट देखे ऑलरेडी। अभी बहुत सारे जो लाइन पे खड़े हैं,
अभी भी चल रहा है, शायद दोपहर 2-3-4 बजे तक चलेगा। जैसा पेशेंट आया पूरा ख़त्म करेंगे आज। मेडिसिन में अभी जो अपना FPI ऑफ इंडिया है, फैमिली प्लानिंग ऑफ एसोसिएशन इंडिया है, उसमें अपन प्रोटीन पाउडर दे रहे हैं जो अभी काम आएगा। मल्टीविटामिन विद लाइसेंस सिरप दे रहे हैं, दर्द के लिए सिरप दे रहे हैं, जो जुकाम खांसी है उसके लिए दे रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स दे रहे हैं, एनर्जी के लिए विटामिन सी दे रहे हैं। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहे हैं अपने को फैमिली प्लानिंग ऑफ इंडिया एसोसिएशन से। और हम मुस्तफा फाउंडेशन से भी बहुत सारे वॉलंटियर्स खड़े हैं जो दिख रहे हैं आपको। ऑलवेज दे हेल्प अस इन ऑल द थिंग्स टू मेंटेन द डिसेंसी एंड डिसिप्लिन एंड इन द लाइन वाइज। और ऊपर वाले की वजह से अच्छा चल रहा है क्या। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के दफ्तर वाक़े मसूद चौक पर ज़रूरतमंदों में माहाना वजीफ़े की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के सदर मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रशदी निगरान, मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी और मौलाना ज़ाकिर हुसैन कामिलुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया ने मुस्तहिक़ीन में वजीफ़े की तक़सीम अमल में लाई। शहर हैदराबाद के अमीरपेट के ML बस स्टॉप पर खातून के साथ बदसलूकी का वाक़या पेश आया। खातून की मदद के लिए पहुंचे पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार का भी मुलजिम नौजवान ने गिरेबां पकड़ लिया और क़ानून के मुहाफ़िज़ को भी मामूली तौर पर ज़ख्मी कर दिया। खातून की शिकायत पर पुलिस ने खाती नौजवान को हिरासत में ले लिया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। शहर हैदराबाद के कीसरा तहसीलदार के 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत के मामले में एक और मुलजिम ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ये वाक़या कल शब पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त धर्मा रेड्डी के तौर पर की गई है। पुलिस ने लाश का पंचनामा करने के बाद दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। विकाराबाद दोमा मंडल शिवा रेड्डी पेट के करीब मजदूरों से भरा एक ऑटो हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 3 मजदूर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जबकि दीगर 12 मामूली ज़ख्मी हुए हैं। मजदूरों से भरा ऑटो लाल पहाड़ मजदूरी के लिए जा रहा था कि ये हादसा पेश आया। बताया जाता है कि ज़ायद मुसाफिरीन के बायस ऑटो अदम तवाज़ुन का शिकार होकर कलवट में गिर पड़ा। हादसे के बाद ऑटो ड्राइवर फ़रार हो गया, जबकि ज़ख्मियों को परगी में वाक़ सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के सबब मौसम सर्द हो गया और कम से कम दर्ज हरारत में गिरावट हो गई। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बेशतर मकामात पर मौसम अचानक सर्द होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशकयासी की है। सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी और फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदारती इंतखाब में जो बाइडेन की जीत, दुनिया नए आगाज़ के लिए पुरुमीद। आज नोटबंदी के 4 साल मुकम्मल। पीएम मोदी ने इससे काला धन पर काबू पाने का दिया था तर्ज। 50 दिनों तक मुश्किलात सहने की आवाम से की थी अपील। तेलंगाना में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट तर्ज की मुफ्त तालीम। जारिया साल से 89 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस के आगाज की तैयारियां मुकम्मल। कोरोना वायरस की वबा से तेलंगाना रियासत की आमदनी में हुई कमी। वज़ीर आला KCR ने महकमा फाइनेंस के अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। जारिया माली साल आमदनी में हुई 52,750 करोड़ की कमी। आफात समावी के दौरान मरकज़ ने रियासत तेलंगाना को किया नज़रअंदाज। वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने मोदी हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। हालिया सैलाब इंसान की लाई हुई तबाही। KTR का बयान। तालाबों और नालों के अतराफ गैर मजाज तामीरात के लिए पिछली हुकूमतों को ठहराया जिम्मेदार। हालात को बेहतर बनाने TRS हुकूमत कर रही है इक़दामात।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही फेसबुक के अलावा YouTube पर भी हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए।